Hello students, hope you all are good. Today we discuss about the numericals of chapter 12 electricity. Write down the first numerical. A current of 0.5 ampere is drawn by filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. Find the amount of electric charge. So numerical solve करने से पहले बच्चे you just write down the given values. Now आपके पास given values क्या है बेटा? Current that is 0.5 ampere, time that is 10 minutes और आपको find out क्या करना है? Electric charge. So answer is, first write down the given values. Current, you already know that current is represented by I, that is equal to 0.5 ampere. Now बच्चे time, that is T, is equal to 10 minutes. Now बच्चे आपका time minutes में given है, you have to convert it into seconds. So here you know that 1 minute is equal to 60 seconds. So 10 minutes is equal to 10 into 60 सेकेंड. सो टाइम क्या हो गया आपका 600 सेकेंड. नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे? चार्ज. चार्ज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q विद क्वेश्चन मार्क. नाउ आपने गिवन वैल्यूज बच्चे नोट कर ली. जस्ट थिंक अबाउट द फॉर्मूला. You know that from the definition of current, I is equal to Q by T. From here Q is equal to क्या आ गया बच्चे आपके पास? IT. Now बच्चे डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर दो I और T की. Q is equal to 0.5 into टाइम कितना है आपके पास? 600 सेकेंड. You just remove the decimal. 5 upon 10 into 600 सेकेंड. 0 से 0 बेटा आपकी कैंसल. You are left with 5 into 60. So 5 into 60 that is चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? 300 कूलम. और Q is equal to 300 C भी मेंशन कर सकते हो. जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर रहे हो बच्चे, इन द एंड आपको उसका यूनिट अप्लाई कर देना है. सो चार्ज क्या आ गया आपके पास? 300 कूलम. नोट डाउन द न्यूमेरिकल बच्चे. ओके. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. हाउ मच
work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt. आंसर. नाउ गिवन वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या है? चार्ज दैट इज 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. फाइंड आउट क्या करना है आपको? वर्क. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V. पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to 12 volt. Charge that is Q that is 2 coulomb. Find out आपको क्या करना है? Work that is with question mark. Now just think about the formula. You know the definition of potential difference. That is V is equal to W by Q. From here, W is equal to V into Q. If you know the formula directly, then you can apply. But if you don't know, then just go with the basic formula and then derive the formula which is used in the numerical. So W is equal to क्या आ गया बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है? 12. चार्ज कितना है आपका? 2. सो W क्या आ गया? 12 2 जा 24 जूल और W is equal to 24 G. Note down the numerical बच्चे. ओके. थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चे आपका a resistance of 15 ohm. A resistance of 15 ohm has a current of 5 ampere. Has a current of 5 ampere flowing in it. 5 ampere flowing in it. Find the amount of potential difference across its ends. Across its ends. Note down बच्चे. Now आपके पास given values क्या है बच्चे? Resistance that is 15 ohm. करंट कितना है? 5 एम्पियर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस. सो राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. आंसर इज रेजिस्टेंस दैट इज R is equal to 15 ohm. Current
that is I, that is 5 एम्पियर। फाइंड आउट करना है बच्चे आपको पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V फाइंड आउट करना है, दैट इज विद क्वेश्चन मार्क। Now बच्चे you know that according to Ohm's law V is equal to I R। डायरेक्ट वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, R की वैल्यू है आपके पास, I की भी है। सो I दैट इज 5 इंटू R कितना है आपका 15। सो 15 5 का 75, 75 क्या आ जाएगा वोल्ट। सो V पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो गया 75 वोल्ट। नोट डाउन बच्चे। ओके न्यूमेरिकल फोर्थ है बच्चे आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of an electric iron is 240 volt and the current is 5.0 ampere or 5 ampere and the current is 5 ampere. Find the resistance of electric iron. Find the resistance of electric iron. Now बच्चे given values write down. Answer is potential difference 240 volt. So potential difference आपका V, that is 240 volt. In the exam you can write directly with the symbol V. ये आपको इजी हो जाए इसलिए मैंने साथ में फिजिकल क्वांटिटी भी मेंशन कर दी और उसका सिंबल भी मेंशन कर दिया। इन द एग्जाम यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द सिंबल और V इज इक्वल टू 240 वोल्ट। सेकेंड करंट गिवन है बच्चे आपको, करंट आपका दैट इज I 5 एम्पियर। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन। नाउ यू नो द फॉर्मूला दैट इज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I R। अब बच्चे देखो आपको यहाँ पे R फाइंड आउट करना है। सो R क्या बन गया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। Now just put the values, that is 240 upon 5. So कटिंग हो गई बच्चे इसकी 5 8 5 4s are 20, you are left with 4 and then 0, 5 8s are
40. So R is equal to 48 ohm. नोट डाउन बच्चे. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे आपका. When 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of there is a current of 2.5 milliampere. Find the amount of resistance. Find the value of or amount of find the value of resistance. Now बच्चे आंसर गिवन है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V 12 वोल्ट. करंट गिवन है बच्चे आपको मिली एम्पियर में, दैट इज I is equal to 2.5 milliampere. You have to convert it into ampere, so that becomes 2.5 into 10 raised to power minus 3 ampere, because 1 milliampere is equal to 1 upon 1000 ampere, or you write it as 10 raised to power minus 3 ampere. नोट डाउन बच्चे. ना बच्चे आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस. So that is with question mark or R is equal to question mark. Now think about the formula. You know that Ohm's law के according V is equal to IR or R is equal to V by I. Now here just put the values. Potential difference कितना है? 12 volt. And आपका current that is 2.5 into 10 raised to power minus 3. ना बच्चे सॉल्व करते हैं. इसका डेसिमल रिमूव किया, इसके नीचे 10, दैट इज रिवर्स हो गए 12 के साथ आ जाएगा. 12 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 10 raised to power minus 3. Now that is equal to 120 upon 25, और ये 10 raised to power minus 3 को बेटा ऊपर ले जाएंगे, that becomes positive 10 raised to power 3. Now when you divide 120 by 25, when you divide 120 by 25, you got 25 fours are 100. You are left with 20. I just mentioned here 120, that is 25. 25 fours are 100. You are left with 20. Here 0 decimal,
25 8s are 200, that is cut, remainder 0. So resistance 4.8 into 10 raised to power 3 ohm, or R is equal to 4.8 into 10 raised to power 3 ohm. Note down बच्चे. Okay. Now बच्चे अब तक आपने जो न्यूमेरिकल किए that are related with the potential difference, current and resistance. Now the numericals that are based on series and parallel combination. Series and parallel. Combination. बच्चे इन न्यूमेरिकल को करने से पहले एक फैक्टर है कि व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सीरीज, रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होगा. R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. When you apply the formula of series, ओवरऑल रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी. एंड व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल, दिस वन इज सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, यू ऑलरेडी डन दैट. और पैरेलल में बच्चे आपके पास वैल्यू डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस की, दैट इज 1 अपॉन R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. सीरीज में वैल्यू रेजिस्टेंस की इंक्रीज होगी, पैरेलल में डिक्रीज होगी. नोट डाउन फॉर द फॉर्मूला, देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. Okay. Write down the numerical. How can three resistance, question number 6, how can three resistance two ohm, 3 ohm and 6 ohm, 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, connected to give total resistance of, connected to give total resistance of फर्स्ट है बच्चे आपके पास, दैट इज योर 4 ओम. सेकंड है 1 ओम. नाउ क्वेश्चन है आपका कि आप इन रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करोगे ताकि आपका फर्स्ट केस में आंसर जो है 4 ओम और सेकंड केस में आपका आंसर जो है 1 ओम है. नाउ
अब बच्चे यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू लिटिल बिट इंक्रीज है, सो इसमें सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी। सो आप क्या करोगे बच्चे, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। ना बच्चे आपका रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम क्या आ जाएगा पैरेलल, और 2 ओम यहां। नाउ यू सॉल्व दिस, दैट इज 1 अपॉन आरपी। आरपी क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, 3 ओम एंड 6 ओम। सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यू राइट 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। सो 3 और 6 का एलसीएम बच्चे दैट इज 6। नाउ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जो डिनोमिनेटर है आपका उसको आप 6 को जो है एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, देन जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 6 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 2 प्लस 1, और दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, और 3 1 द 3, 3 2 द 6, दैट इज 1 अपॉन 2 ओम। अब 1 अपॉन आरपी है, so 1 upon rp is equal to 1 upon 2 ohm. From here rp becomes 2 ohm. Now आपके पास बच्चे देखो सीरीज में आ गया, इन दोनों का आंसर क्या आ गया 2 ohm, और ये 2 ohm ऑलरेडी है, so rs is equal to r, इसको टोटल को rp कंसीडर कर लेते हैं, इसको R3 कंसीडर कर लेते हैं। सो R3 प्लस RP, यहां पे आप कंसीडर कुछ भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो R3 कितना है बच्चे 2 ओम प्लस 2 ओम, आंसर बिकम्स 4 ओम, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो आपने कैसे कंबाइन किया बच्चे, सीरीज और पैरेलल दोनों, नोट डाउन बच्चे। देन वी स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में बच्चे देखो वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि रेजिस्टेंस को आप कैसे कनेक्ट करोगे पैरेलल में। सो व्हेन यू कनेक्टेड इन पैरेलल, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। टू ओम 3 ओम एंड 6 ओम, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। सो पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। just put the values 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 6। 2, 3 और 6 का एलसीएम बच्चे क्या आ गया आपके पास, दैट इज 6। आई अगेन रिपीट, एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, डी से याद रखना। सो व्हेन यू डिवाइड 6 by 2 you got the answer 3, 2 3 the 6, और जो आंसर आया डिवाइड करके
उसको न्यूमिनेटर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सो 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 1 द 2, 6 1 the 6, 1 1 the 1. So you are with 6 upon 6, that is 1 upon 1, or you write it as Rp is equal to 1 ohm. That is the required answer. Note down बच्चे। Okay, fine. Next numerical. What is the highest and the lowest? What is the highest and the lowest resistance that can be secured by the combination of 4 coils? That can be secured by combination of secured by combination of 4 coils। वैल्यूज हैं बेटा आपकी 4 8 12 24, 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। नाउ बच्चे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट के रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब मींस टू से दैट आपको यहां से आइडिया हो गया कि हाईएस्ट के लिए आप क्या करोगे, इन रेजिस्टेंस को सीरीज में अप्लाई कर दोगे सीरीज फॉर्मूला में। और लोएस्ट के लिए मैंने बता दिया आपको, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो लोएस्ट के लिए आप इनको क्या कर दोगे, पैरेलल में कंबाइन कर दोगे। सो सीरीज के लिए बच्चे आरएस रेजिस्टेंस इन सीरीज 4 रेजिस्टेंस है, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, that is 4 plus 8 plus 12 plus 24. You are with the answer, that is RS is equal to 48